Assalamualaikum everyone. So today we are going to discuss another topic of fixed appliances in the orthodontics, which is brackets. Brackets are basically the attachments that are being attached on the tooth surface for various purposes. So major purpose of a bracket is to transmit, is to basically act as a handle. Why as a handle? To basically transmit फोर्स. अब वो फोर्स कहाँ से आएगी और कहाँ जा रही है? वो फोर्स जो कि एक्टिव कंपोनेंट से आ रही होती है और टूथ की सरफेस पे लग रही होती है. तो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो, फॉर एग्जांपल इफ आई लाइक ड्रॉ दिस फॉर एग्जांपल, सो वी हैव अ स्लॉट हियर एंड वी हैव अ स्लॉट हियर. This is not actually a bracket looks like, but I'm just trying to give you a visual representation. So we have different slots in the bracket. Like for example, this slot is for a molar tube. This is for a face bow. Let's suppose. So different slots in the brackets have different kind of functions. So basically, a bracket as a whole is used to transmit a force which is coming from the active components like any kind of appliances to the teeth surface. So we have lot of brackets types. So based on the first type, which is based on the technique. So in case of technique, we got to know three different type of brackets. Number one is edgewise. Number two is ribbon arch. And number three is tip edge. Let's see कि edgewise सबसे पहले क्या है. So firstly edgewise bracket slot. Edgewise bracket slot जो है वो बेसिकली एक टेक्निक थी जिसका नाम था edgewise एंड स्ट्रेट वायर टेक्निक. उसमें इस्तेमाल हुई थी और उसके अंदर जो एबिलिटी थी वो कैसी थी? हॉरिजॉन्टल स्लॉट फेसिंग लेबियली. हॉरिजॉन्टल स्लॉट थी जो लेबियली फेस करी थी. तो ये जो ब्रैकेट्स की ओवरऑल शेप है एडजवाइज वो कह रहे हैं दे आर रेक्टेंगुलर एंड दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे हैव अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. कि उनका जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बिल्कुल एक रेक्टेंगल की तरह लगता है. इसीलिए हम इन स्लॉट्स को, हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स को, वी ऑल्सो कॉल देम रेक्टेंगुलर स्लॉट्स. सो इनकी जो डायमेंशन है, फर्स्टली एक वो लार्जर डायमेंशन है और दूसरा वो एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में लाई करती हैं. अब इनका फ़ायदा क्या है? इस एजवाइज ब्रैकेट्स का फ़ायदा ये है कि दे हैव ग्रेटर कंट्रोल, दे हैव मोर कंट्रोल ओवर द टूथ मूवमेंट. राइट, कि वो बेहतर तरीके से टूथ मूवमेंट को कंट्रोल कर सकती हैं और इसके अलावा ये टीथ को टिप भी नहीं होने देते. होता है ना पास औरतों के ट्रीटमेंट के दौरान प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि टिपिंग हो जाती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड टिपिंग हो जाती है. तो वो जो टिपिंग है वो भी ये ब्रैकेट्स नहीं होने देंगी बिकॉज ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, बिकॉज ऑफ देयर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड बिकॉज ऑफ देयर लार्जर डायमीटर. दे आर गुड इन controlling the tooth movement and resisting any kind of tipping movement. Second bracket we have ribbon arch brackets. In case of a ribbon arch bracket, we have a vertical slot. जबकि edgewise में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक horizontal slot होती है. In ribbon arch we have a vertical slot. So it is vertical, so of course it will be in the occlusal or the gingival direction. Occlusal which is towards the occlusal surface of the teeth and gingival which is towards the above mucosal or gingival area. So इन ब्रैकेट्स का जो मीजियोडिस्टल स्लॉट है वो नैरो है. और ये ब्रैकेट्स हम तब यूज करते हैं जब हमने राउंड वायर यूज करनी होती है. और राउंड वायर्स क्यों यूज करनी है? जब हमने
जब हमने किसी भी टीथ की टिपिंग मूवमेंट्स करवानी है, वो टिपिंग मूवमेंट्स नहीं करवाती. द edgewise brackets doesn't carry out any kind of tipping movements in any direction. So if we want the tipping movement, and if we are using the round wires, we can have a tipping movement in any direction, which is labial or lingual or mesial or distal. We can have tipping movement in these four directions by using the ribbon arch brackets, and they are used in the bag fixed appliance. Remember always, these ribbon arch appliances are used in the brackets are used in bags fixed appliance. So third one we have in the based on the technique, the third bracket we have is tip edge bracket. The tip edge bracket was basically designed by Peter C. Castling. ये जो ब्रैकेट बनाई गई तो कैसे बनाई गई? बाय रिमूविंग द डायगोनली अपोजिंग कॉर्नर्स ऑफ एजवाइज आर्च स्लॉट. कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल इफ लाइक दिस इज व्हाट डायगोनल क्या चीज़ होती है, इस तरह. तो जो एज वाले एरियाज थे उनके जो कॉर्नर्स थे डायगोनली ऑपोजिट आर्च के कॉर्नर्स जो थे उनके उन्होंने रिमूव कर दिया, इन कॉर्नर्स को रिमूव कर दिया. ये कॉर्नर्स किस चीज़ के हैं? ये आर्च वायर के, और आर्च वायर कैसी थी? एज वाइज, राइट. तो ये जो एज वाइज या टिप एज जो नाम है इस आर्च वायर की वजह से है, ठीक है. और इसमें याद रखना कि डायगोनली एक वायर प्लेस्ड थी, लेकिन आपने उसके जो कॉर्नर्स थे उनको रिमूव कर दिया. और उनको रिमूव करने से क्या हुआ? उनको रिमूव करने से फ्री क्राउन टिपिंग हुई, और फ्री क्राउन टिपिंग के साथ साथ कंट्रोल्ड रूट अपराइटिंग भी हुई. नाउ व्हाट इज अपराइटिंग? Uprighting is basically a root movement in a mesial or a distal direction. So, by removing the corners of a diagonally placed edgewise arch wire, we can do free crown tipping, and also we can have a controlled root uprighting. और जिस तरह हम हर ब्रैकेट में उसका एक स्लॉट बताते हैं कि उसमें कोई ना कोई स्लॉट है, इसमें स्लॉट वर्टिकल है. ये स्लॉट इसलिए है कि अगर कोई स्प्रिंग वगैरह लगना है, कोई भी अपराइटिंग के लिए कोई चीज़ लगनी है, तो वो इजीली उस स्लॉट में लग जाए. और उसके अलावा इस अप्लायंस की सबसे मेजर और ख़ास बात यह है कि इट कैन कंट्रोल रोटेशन, बिकॉज इसके अंदर रोटेशनल विंग्स हैं जो कि रोटेशनल कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, रोटेशन को कंट्रोल करते हैं, टीथ को रोटेट नहीं होने देते. सो दिस वॉज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रैकेट. तो टेक्निक में हमने कहा कि एजवाइज है, अगर आप उसको देखें तो उसमें हॉरिजॉन्टल स्लॉट मिलते हैं और वो टिपिंग मूवमेंट्स नहीं करवाती. फिर हमने कहा रिबन आर्च, जिसमें आपको वर्टिकल स्लॉट्स मिलते हैं जो कि टिपिंग मूवमेंट करवा सकती है किसी भी डायरेक्शन में, और बैग्स अप्लायंस में यूज होती है. थर्ड टिप एज, जिसमें डायगोनली कॉर्नर्स को रिमूव कर दिया एज वायर के, और उससे टिपिंग की भी हो गई और रोटेशन भी प्रिवेंट हो गई और रूट की अपराइटिंग भी हो गई. So the next we have brackets on the basis of mode of attachment. और वो अटैचमेंट हमें पता है कि वो टूथ के साथ ही अटैचमेंट है, टू टूथ. इसमें we have two, the bonded and the welded. क्या आप उसको बॉन्ड भी कर सकते हैं, जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बॉन्डिंग पिछली वीडियोस में मैंने कवर की हैं. यू कैन गो एंड चेक आउट. डायरेक्ट बॉन्डिंग का भी प्रॉपर प्रोसीजर, उसके जो 5 स्टेप्स हैं वो हमने किए हैं. इनडायरेक्ट बॉन्डिंग की भी जो डिटेल है वो भी मैंने दे दी हुई है, इंडिविजुअल वीडियोस मौजूद हैं. और इसके अलावा हम उसकी वेल्डिंग भी कर सकते हैं. तो बॉन्डिंग के लिए एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द वीडियोस कि हम लोग उसमें एडहेसिव्स यूज़ करते हैं, जो कि हम पहले से प्री ट्रीटमेंट के थ्रू इनेबल की सर्फेस पे लगा देते हैं, उसको रफ करने के लिए, उसको डल करने के लिए, ताकि ईजिली रिटेंशन इंक्रीज हो जाए और ये हमारी जो ब्रैकेट है वो ईजिली बॉन्ड हो जाए, उसका स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाए. तो इनको कहेंगे बॉन्डेबल ब्रैकेट्स, बिकॉज दे कैन बी ईजिली बॉन्डेड.
लेकिन ऐसे ब्रैकेट जिनकी वेल्डिंग होती है या जिनकी सोल्डरिंग होती है, ठीक है, तो उसके अंदर हम उनको बोलते हैं वेल्डेबल ब्रैकेट्स। तो बॉन्डेबल ब्रैकेट्स में ये होता है कि अंडरनीथ इस ब्रैकेट के, जो ब्रैकेट नीचे लगनी है, दिस इज डबल ब्रैकेट, इसके नीचे पीछे की तरफ जो है या नीचे जो है वो एक मैशवर्क है, एक इस तरह इंटरलॉकिंग मैशवर्क है। वो इंटरलॉकिंग मैशवर्क उस ब्रैकेट को उस एरिया में जो ग्रूव्स हैं उनके साथ इंटरलॉक करवाता है, राइट। ये जो मैशवर्क को जो अंडर द बनता है आपके ब्रैकेट जब आप बॉन्डेबल ब्रैकेट यूज करते हैं। और वेल्डेबल में नीचे उनके एक मेटल फ्लैंज होता है और वो मेटल फ्लैंज इन वेल्डेबल ब्रैकेट्स को बैंड्स के साथ जोड़ने में हेल्प करता है, बिकॉज वेल्डेबल ब्रैकेट्स जो है वो उनको सोल्डर करना या वेल्डर करना ओवर अ बैंड, तो उसके लिए बैंड के साथ जोड़ने के लिए इट शुड हैव अ मेटल फ्लैंज, एक एक्सटेंशन निकलनी चाहिए मेटल की जो इस ब्रैकेट को बैंड के साथ जोड़े। देन वी हैव बेस्ड ऑन स्लॉट, तो इसमें भी दो हैं, हॉरिजॉन्टल स्लॉट वाली ब्रैकेट्स और वर्टिकल। तो अभी हम लोग फर्स्ट बेस्ड ऑन टेक्निक में ये दोनों कवर करके आ चुके हैं, मैं सिर्फ यहाँ नाम बता रही हूँ बिकॉज ये वो वाली ब्रैकेट्स का ही है प्रोसीजर। तो हॉरिजॉन्टल हम अभी देख कर आए हैं कि फर्स्ट वन सबसे पहली वाली जो थी एज वाइज ब्रैकेट, और जिसमें एज वाइज और स्ट्रेट वाली टेक्निक यूज हो रही थी, वो हॉरिजॉन्टल स्लॉट वाली ब्रैकेट में फॉल करती है। और वर्टिकल अभी हम देख कर आए हैं कि रिबन आर्च वाली ब्रैकेट या फिर वो ब्रैकेट जो कि बैग्स अप्लायंस में यूज हो सकती है, जिसको बैग्स ब्रैकेट भी कहते हैं, वो आपके पास वर्टिकल स्लॉट में लाई करती है। सो नेक्स्ट वी हैव ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन मटीरियल, कि किस मटीरियल की ब्रैकेट्स वो बनी हुई हैं, बेस्ड ऑन मटीरियल। मटीरियल में सबसे पहले वी हैव फर्स्ट वन इज मेटेलिक ब्रैकेट्स।